Hello, students. Welcome to you all on the YouTube channel of City Public School. I'm Abhishek Tiwari, and I'm welcome you all on the very first video of its first time. The advertisement, the language skills. I'm going to provide you the writing skills in language section. The very first time, the very first video, which I brought to you. For the City Public Schools YouTube channel. So students, let us talk about the advertisement. Okay, so advertisement is a very important topic, and I would take every noops and corners of this chapter, of this topic, very closely to everything, and I am just guaranteeing you that you will be able to know everything regarding this would be a very different experience which I'm going to provide you. Okay, so let's see everyone. Advertisement. Okay, let us talk about advertisement. So what is advertisement? First of all, let me tell you what is advertisement. An advertisement is paid, non-personal, public communication about causes, goods and services, ideas, organization, people and places through means such as direct mail, telephone, print media like newspaper and magazine, radio, television and internet. Students, an advertisement is a paid, okay, एक paid format होता है, non personal होता है, which is not personally, okay, we personally never ever to go through advertising. पब्लिक कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो बेसिकली बेस्ड होता है किसके लिए? कॉजेस के लिए, कोई कारण होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट होता है, आइडियाज़ ऑर्गेनाइजेशंस का एडवर्टाइजमेंट होता है, पीपल एंड प्लेसेस का एडवर्टाइजमेंट होता है ना। और इनके जो मीडियम्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट मेल, टेलीफोन, प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट। इन सब के माध्यम से चीज़ों को एडवर्टाइज़ किया जाता है। द कंटेंट इज़ ब्रीफ। जो कंटेंट होता है एडवर्टाइजमेंट का, स्टूडेंट्स, दिस इज़ ब्रीफ। वर्ड लिमिट्स, ओके, जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिट में होते हैं, मींस कंटेंट जो होता है वो ब्रीफ होता है, वर्ड जो है वो लिमिटेड होते हैं। एंड सेंटेंसेस नॉट नेसेसरली ग्रामेटिकली करेक्ट, and there is no need of any grammatically correction of the sentences. Okay, means here you have to write in phrases and short in words, so there is no need of any grammatical corrections. Okay, so this is what the advertisement, everyone. hope आपको ये समझ में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. स्टूडेंट्स, हम एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स को स्टडी करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ओके, एडवर्टाइजमेंट के दो टाइप्स होते हैं, यू नो इट. ओके, द वन इज़ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स एंड द सेकेंड इज़ कमर्शियल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. ओके, ब्रॉडली ये दो तरह के होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स एंड कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स. ओके, so let us talk about the classify advertisement. Okay, so students, the classify advertisements, let me tell you what they are. Okay, first of all, कि classified advertisement होते क्या हैं. Okay, so they are divided into categories or class in the newspaper or magazine. So जो advertisements होते हैं स्टूडेंट्स, they are divided, ये बंटे हुए होते हैं इनटू कैटेगरीज़. ये कई कैटेगरीज़ में बंटे हुए होते हैं या कई क्लासेस में बंटे होते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन्स में अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, उनका अपना सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज एंड क्लास. ओके, और क्लास. सो इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन. तो एडवर्टाइजमेंट मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करने के लिए लिखा जा रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन इट, द कैटेगरीज आर डिवाइडेड ऑन दैट बेसिस. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. स्टूडेंट्स,
Let me tell you the characteristics of the advertisements. So the characteristics of advertisement means the attribute of the advertisements are, पहला इसमें है categorized into columns according to different classes. ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं क्लासिफाइड वो कैटेगराइज होते हैं अलग अलग कॉलम्स में अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट क्लासेस, अपने अलग अलग क्लासेस के बेसिस पे डिवाइड होते हैं. ब्रीफ एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बहुत ही ब्राइफली लिखे जाते हैं, शॉर्ट में लिखे जाते हैं और बहुत ही कम स्पेस घेरते हैं. इकोनॉमिकल होते हैं अगर हम इनको न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें. स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट सीखते हैं, सो ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट, ड्यूरिंग लर्निंग एडवर्टाइजमेंट, वी शुड आल्सो प्रेफर द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर्स विच कम्स टू योर हाउस एवरी डे. जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है आप उसके थ्रू इसको स्टडी कर सकते हैं. वहाँ पे ये सबसे सस्ता मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है ये. ठीक है, तो इसको इकोनॉमिकल मीडियम भी कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का. इसके अलावा रिटन इन शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट सेंटेंसेस में नहीं लिखे जाते हैं कभी भी, वो शॉर्ट फ्रेजेस या वर्ड्स में लिखे जाते हैं. ठीक है, कैसे होंगे वो आपको फॉर्मेट और बहुत सी चीज़ें हम बताएंगे, डोंट यू वरी अबाउट. लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड कंसाइज, इसकी भाषा जो होती है साधारण होती है, कंसाइज होती है मतलब कि स्पष्ट होती है, फैक्चुअल फैक्ट बेसिस पे होती है, बहुत घुमा फिरा के स्पाइरलिंग नहीं की जाती है, एंड फॉर्मल होता है और एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होता है. फॉर्मल मीन्स जहाँ पे फॉर्मली हर चीज़ हो, इनफॉर्मली कुछ भी नहीं होता है. ओके, सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स for writing an advertisement. Students, after it let's talk about the types of advertisement. okay, इसके बाद students हम लोग types of classified advertisement को पढ़ते हैं. so जो important होते हैं advertisements के, जो basically exams में frequently asked होते हैं, वो पहला होता है situation vacant, दूसरा situation wanted, तीसरा to let type, fourth lost and found, fifth matrimonial alliance, okay, sixth sale and purchase, and seventh missing person and pet के मिशिंग को लेकर के. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो यही 6 और 7 होते हैं जो हमें एक्चुअली हमारे सिलेबस में स्टडी भी करना है. ओके गाइज, लेट्स मूव फर्दर. लेट मी टेल यू द मार्किंग स्कीम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स. एडवर्टाइजमेंट्स की मार्किंग स्कीम क्या होती है, लेट मी टेल यू ऑल्सो. स्टूडेंट्स, जो एडवर्टाइजमेंट होती है मार्किंग स्कीम मतलब कितने मार्क्स में ये चेक होते हैं और कौन से मार्क्स किस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब आप टाइटल लिखते हैं इसकी जो मार्किंग होती है, जब एग्ज़ाम में ये चेक होता है तो ओवरऑल ये 4 मार्क्स का होता है. स्टूडेंट्स, टाइटल इसका 1 मार्क का होता है, कंटेंट इसके 2 मार्क्स के होते हैं, एक्सप्रेशंस 1 मार्क के होते हैं और टोटल जो मैंने आपको बताया कि 4 मार्क्स का होता है. तो एक टाइटल लिखना इंपॉर्टेंट होता है और सभी जो मार्क्स होते हैं स्टैक वाइज डिवीज़न है मार्क्स का. तो अगर आप टाइटल नहीं लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स में इवैल्यूएट किया जाएगा. अगर आप जो है अगर आप टाइटल लिखते हैं और उसके अलावा कंटेंट में कमी है और उसके हिसाब से आपके मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है ना, तो ओवरऑल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. Let's move further. The very first type of classified advertisement, which is the type 1, situation vacant. Okay, students, the first type of advertisement which we have to prefer here is the situation vacant type. Okay, so the details required for the situation vacant means characteristics that required for it is और द फॉर्मेट विच रिक्वायर्ड फॉर इट. फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी डिटेल्स को जान लेते हैं कि गिव हेडिंग्स रिक्वायर्ड और सिचुएशन वैकेंट. ठीक है, हेडिंग आप लिखिए रिक्वायर्ड या सिचुएशन वैकेंट करके, आप ऊपर एक हेडिंग का बॉक्स बनेगा तो आप वहाँ पे रिक्वायर्ड और सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे. देन आफ्टर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू राइट onto the brief description of advertisement. Then after indicate post and number of vacancies. Essential qualification experiences is also been explained here.
गिव प्रेफरेंस इफ़ एनी, अगर कोई प्रेफरेंस देना है आपको जॉब स्केल को, जॉब डेजिग्नेशन या पोस्ट को लेकर के, तो आप वो भी दे सकते हैं। आफ्टर इट यू कैन ऑल्सो गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ द एडवर्टाइज़र, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये नेसेसरली इसको लिखना होता है सिचुएशन वैकेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट में। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड द फॉर्मेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि इसका प्रारूप कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है। सो स्टूडेंट, एक बॉक्स में जैसे ये बना हुआ है, ऐसे ही आप एडवर्टाइजमेंट को लिखते हैं। टाइटल आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सिचुएशन वैकेंट या फिर रिक्वायर्ड करके। उसके अलावा फिर आप स्टार्ट करते हैं रिक्वायर्ड करके, और एक डेजिग्नेशन आपको देनी होती है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट आपको लिखना होता है कि कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, क्वालिफ़िकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अगर चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, आप वहाँ पे लैंग्वेज पूछ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश और ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, सो वॉट एवर। Salary you have to mention over there, what salary, what perk you would give to tempt that to tempt the personnel to occupy that vacancy. Okay, contact and address, contact number, address of the advertiser, वो सब आपको लास्ट में डिटेल्स देना होता है। So this is the format of the situation vacant type of advertisement. Okay, नाउ लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक एग्जाम्पल के मीडियम से हम इसको समझ लेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सिचुएशन वैकेंट को लेकर के। सिचुएशन वैकेंट्स और सिचुएशन वांटेड में क्या डिफरेंस होता है, आप इसको एक स्लाइटली समझ लीजिए कि जब एम्प्लॉयर को, ठीक है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय चुनना होता है तो सिचुएशन वैकेंट लिखे जाते हैं, और जब एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयर चुनना होता है तब, या एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है तो सिचुएशन वांटेड लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू राइट इट। रिक्वायर्ड अ डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर अ रिनॉर्डेड फर्म। ठीक है, आप स्टार्ट ऐसे करेंगे। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 years। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया, क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया, एंड आफ्टर इट एडिशनल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड 30 वर्ड पर मिनट ऑफ टाइपिंग। ओके, शॉर्ट हैंड टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए, ये आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है। सैलरी निगोशिएबल, आपने लिख दिया कि सैलरी जो है वो निगोशिएबल है, मीन्स वेन एवर वी इंटरव्यूड we decide the salary together talking with employer and employees. Okay, sometime it is not necessary to write only negotiable. Sometime if employer can also give the right digit, वो डिजिट भी दे सकते हैं कि 30,000, 50,000, 10,000, 100,000 जो भी लिखना होगा वो आप डिटेल एग्जैक्टली भी दे सकते हैं, हर जगह निगोशिएबल ही नहीं होगा। इंटरेस्टेड, इसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर CVs, करिकुलम वीटे कहते हैं उसको CVs को, या उसी को हम पॉपुलरली रेज्यूमे, बायोडाटा कहते हैं, टू ग्रीनलैंड एंटरप्राइजेस, ये कंपनी या फैक्ट्री का नाम हो गया लिमिटेड। ठीक है, फिर राजाजीपुरम लखनऊ सेक्टर जो भी है उसको लिखना पड़ेगा। ओके, एंड देन आफ्टर एट लास्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल नंबर इफ़ हैव, तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर्स लिखने होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द first type of situation vacant. Students, there are several exercises in your books and on mobile phones, so you pick exercises and try to write them all, okay, as maximum as you can of situation vacant, and send me same to check me, okay, whether it is right or wrong. तो ये काम आपको करना है, और फिर एक अगले लेक्चर में, अगले वीक में जब हम फिर मिलेंगे तो हम सिचुएशन वांटेड के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके फॉर्मेट एंड एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।